BJP spokesperson Prakash Javadekar is addressing the media on the LPG cap raise. Let's just listen in. और अब 10 रुपए का इजाफा करने का इरादा है। सरकार घोषणा करे उससे बहुत जन आक्रोश होता है, इसलिए अब कंपनियों के हवाले छोड़ दिया है। 3 रुपए इस साल 8 रुपए बढ़ा चुकी है और अब 10 रुपए का इजाफा करने का इरादा है। सरकार घोषणा करे उससे बहुत जन आक्रोश होता है, इसलिए अब कंपनियों के हवाले छोड़ दिया है और कंपनियां करेगी। आज रात से ही कुछ होगा, फिर हर महीने होगा, 15 दिन में होगा। तो ये 10 रुपए कीमत बढ़ाने का बोझ सरकार डालने का निर्णय कर चुकी है। वो छुपा रही है क्योंकि बताने का धाड़स नहीं है। पहले रेल, फिर तेल। जनता समझती है कांग्रेस का यह खेल, और इसलिए ये जो सरकार का डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ाने की जो निर्णय है, उसकी हम घोर आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि इससे सभी दामों में इजाफा होगा। और ये क्यों हो रहा है? सरकार की कोई नीति नहीं है। 9 साल में 4 पेट्रोलियम मंत्री बदले, 15 बार निर्णय बदले। 2004 में कहा था कि हाइड्रोकार्बन प्राइसिंग पॉलिसी करेंगे, नहीं किया। एक क्योटिक सिचुएशन है और इसलिए ये दाम बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी opposes government design to increase the diesel prices by whopping rupees 10 per liter of diesel. People are already reeling under the inflation. They expect some relief from government. But instead of giving relief, government itself is increasing the prices of every services. So first they raise the prices of rail fare before budget. Now they are raising prices of diesel. The meaning of today's decision to allow oil companies to take a call on prices of diesel is an actual decision by the government to increase the price by 10 in phases, rupees 10 per liter. This is atrocious. And this is escapism. And this is happening because there is no policy of the government. Government changed 4 petroleum ministers. They changed the pricing decisions 15 times. And they declared that in 2004 they will first do the task of declaring the hydrocarbon pricing policy. But they did not. And the result of which is a complete chaos. And that is burdening the people unnecessarily, who are already reeling under the price rise regime. इसका बहुत ज्यादा कैस्केडिंग इफेक्ट होते हैं, उसकी एक श्रृंखला से परिणाम होते हैं। जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो डीजल के दाम बढ़ने का अर्थ होता है कि सभी प्रकार की यातायात और माल ढुलाई के दाम बढ़ते हैं। तो स्कूल बस के दाम बढ़ेंगे, बस के दाम बढ़ेंगे, ट्रक के दाम बढ़ेंगे, माल ढुलाई के दाम बढ़ेंगे, रेल के दाम बढ़ेंगे। सभी प्रकार के यातायात, स्टेट ट्रांसपोर्ट के बढ़ेंगे, यहां तक कि एम्बुलेंस के भी बढ़ेंगे। और जो शववाहिका होती है उसके भी बढ़ेंगे।
तो और उसके साथ साथ किसान के लिए तो ये बर्बादी का निर्णय है, क्योंकि खेती में पंप चलता है डीजल से अनेक जगह, खेती में ट्रैक्टर चलता है डीजल से, और ये डीजल और पेट्रोलियम के प्राइसेस जैसे बढ़ते हैं वैसे ही खाद की कीमतें में बहुत उछाल आती है, खाद की कीमतें बढ़ती है। और इसलिए ये खेती के लिए भी बहुत ही विनाशकारी निर्णय है, और इसमें भी विनाशकारी निर्णय है। और इसका मतलब है कि सरकार 10 रुपए बढ़ाएंगे। The worst part of this diesel price hike, a decision in disguise to hike the diesel prices by announcing freedom to oil marketing companies to decide and take a call on diesel prices, is nothing but a deliberate decision to hide the facts from the people. Government is shirking away from its responsibilities, and which will have a tremendous cascading effect. All the transport cost, maybe the passenger transport or the goods transport, it will increase. It will also impact adversely the agriculture sector, as the pumps and the fertilizer prices also will go up, but majorly the tractor and diesel prices will impact the farmers adversely. And that is why this is an anti-people decision. ये जनविरोधी निर्णय है, और इसीलिए हम इसकी भर्त्सना करते हैं, क्योंकि इस सरकार की कोई नीति नहीं है। और इसलिए जरूरत थी, बहुत सारे उपाय थे। आज भारत में पेट्रोल और डीजल पे जितना टैक्स लगता है उतना दुनिया में शायद ही कुछ देशों में लगता होगा। बहुत सारे देशों में हमसे कम टैक्स लगता है। India is witnessing a high taxation regime on the petroleum products. Central government this year will earn more than 2 lakh crore rupees, 200,000 crore rupees by taxing the petroleum products. It's a huge taxation. And the figures which they offer for public of under recovery are also not true. They are disputable. आधा सच है, आधा झूठ है। अंडर रिकवरी का जो आंकड़े देते हैं कि अंडर रिकवरी इज नॉट लॉस, माइंड यू, अंडर रिकवरी नुकसान ही है। और अंडर रिकवरी में जो आंकड़े दिए जाते हैं आधा सच है, आधा झूठ है। और इतने ज्यादा टैक्सेशन, इतने ज्यादा कर किसी एक चीज पर नहीं लगते। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जो सरकार ने कर लगाया है, केंद्र सरकार को इस साल 2 लाख करोड़ की आमदनी होगी। यह बहुत ज्यादा है। एक सेक्टर पर कितना बोझ डालोगे और जनता को कितना महंगा करोगे पेट्रोल और डीजल, और कैसे चलेगा। और बिजली भी महंगा करने का बोला है और कर रहे हैं, पानी भी महंगा हो रहा है, और अब रेल भी महंगी कर दी है। तो ये डीजल के बारे में है। जहां तक गैस का मुद्दा है, गैस का जहां तक मुद्दा है, 6 का 9 करना एक नौटंकी है। इट्स अ ड्रामा। कमाल है, पहले तो जितने भी लगते थे घर में, जरूरत जितनी उतना गैस सब्सिडाइज रेट में मिलता था। इन्होंने तुगलकी फरमान निकाला और 6 कर दिए। अब उसी तुगलकी फरमान में 6 के 9 करना कौन सी बड़ी राहत है? क्या राहत है इसमें? पहले तो 18 भी मिलते थे, 20 भी लगते घर में तो लगते थे बड़े परिवार में। तो जो लोगों को मिलता था 65 साल आजादी के बाद से, लोगों को जितना भी जरूरत घर में है उसका एक रेट होता था, और वो उसे सब्सिडाइज कहते हो। लेकिन जो भी रेट घर के लिए था, उसी में जितने भी सिलेंडर चाहिए मिलते थे उपयोग के।
हाँ, कमर्शियल उपयोग के लिए अलग रेट था, वो मंजूर है। लेकिन अब आपने ही तुगलकी फरमान निकालकर अनगिनत से 6 लाए, जिस पर बहुत आक्रोश हुआ, और अब वो 6 के 9 किए। इससे क्या राहत है? कुछ राहत नहीं है। ये तो चोरी छिपे पिछले दरवाजे से दाम बढ़ाने की ही कवायद है, और पहले बहुत दाम बढ़ाएंगे और फिर 5 रुपए बढ़ाकर 1 रुपया सहूलत देने जैसी बात है। ये कोई मतलब नहीं इसका। See, this whole LPG cap increase is a farce, because for 60 years consumers were getting their requirement, maybe it is 15 cylinders or 20 cylinders, they used to get in a designed consumer price for the residential use. Commercial prices were different. But now you draw a fiat by which you reduce that unlimited supply of gas to 6 cylinders, which was totally atrocious. And now you are saying that you have increased from 6 to 9 and people should feel relieved about it. What is to be celebrating about it? There is nothing to celebrate. This is nothing but an effort by raising the prices under different disguise. That's कांग्रेस की एक कला है कि वो नए नए तरीके ढूंढ निकालती है कि कैसे कीमतें बढ़ाए, और इसलिए यह अन्याय बदस्तूर जारी है। बीजेपी इस राशनिंग को समाप्त करने की मांग करती है। ये गैस सिलेंडर का जो राशनिंग है वो समाप्त होना चाहिए। जिसकी जितनी जरूरत उसको उतनी गैस, यही नीति होनी चाहिए घर के उपयोग के लिए, और यही हमारी मांग भी है। तो ये आज जो दोनों निर्णय लिए हैं, निर्णय ऐसे बताइए पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली जी ने कि हमने तो 6 के 9 कर दिए, यानी बहुत लोगों को खुश कर दिया, और फिर कहते हैं कि डीजल कंपनियां को आजादी दी गई है, हमने डीजल के प्राइस नहीं बढ़ाई। और क्या किया है कि बोले डीजल कंपनियों को परमिशन दी है कि वो अपना निर्णय ले ले। वो क्या निर्णय लेगी? वो सरकारी कंपनियां हैं, दे आर 100% गवर्नमेंट कंपनीज, एंड यू आर आस्किंग अस टू पे फॉर देयर इनएफिशिएंसीज। हर एक कंपनी का क्रूड मिक्स अलग है, हर कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर अलग है, हर कंपनी का स्टाफिंग पैटर्न अलग है, हर कंपनी का जो रिफाइनरी कॉम्प्लेक्सिटीज है वो अलग है, हर कंपनी का जो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर है वो अलग है, और उसमें इनएफिशिएंसी बहुत है, और उस इनएफिशिएंसी की कीमत हमें देने को कह रहे हो। सी, there are n number of factors making it totally inefficient operation. There is no real competition. It's a cartel. And you are asking consumers to pay for the inefficiencies of the oil marketing companies, which is not right. And that's why हम हमारी इसका विरोध जताते हैं, और इसको विरोध जताकर हम मांग करते हैं कि जो पहले घोषित किया था वो हाइड्रोकार्बन प्राइसिंग पॉलिसी घोषित करो, ये रोल बैक करो निर्णय। जितनी जिसकी जरूरत है उसको घरेलू जितनी भी जरूरत है उतने गैस उसको तय कीमत में मिलने चाहिए, और डीजल की अभी ये स्थिति नहीं है कि इस पर और ग्राहकों पर बोझ बढ़ाए जो महंगाई के अंदर पीसे जा रहे हैं। हमारे तरफ से इतना ही है। कोई सवाल होंगे तो जरूर पूछे। राहुल श्रीवास्तव। That time the international prices were $30 per 1 minute. 1 minute. You have asked the question, let me answer it. We addressed all gamut of questions. We had the policy in perspective. We had the सारे दुनिया के क्या दाम है वो भी देख रहे थे, और देश में बाकी सभी चीजों के महंगाई पर पूरा लगाम लगा था,
उसके बाद ये निर्णय लिया था। यहां तो महंगाई में आग लगी और सरकार और आग लगा रही है। ये मुद्दा है वक्त का भी। इट इज द इश्यू ऑफ टाइम ऑल्सो व्हेन टू reform, and when you have no policy whether you are reforming or deforming, how one will know? There is no a clear road map. That's the answer.